Greetings everyone. Welcome back to the channel Easy Breezy. I hope you all are doing good and again are ready to grasp some insightful information today. So without further ado, let's begin. Today I have come up with another topic that is a very important concept in economics, that is the concept of aggregate demand. Aggregate demand is an important concept and often we are confused as to what is this concept all about because this is a very basic concept. If this basic is clear to you, then further you can develop on your understanding into more difficult topics. But if this particular concept is not clear, then it is definitely meant to create many confusions when you go on further reading. So, I'll start. So, the first question that comes to our mind is what is aggregate demand? जब हम aggregate demand की बात करते हैं तो aggregate demand है क्या? So aggregate का मतलब क्या होता है? Aggregate means total, in totality. कोई चीज़ total, ये aggregate marks आए हैं मेरे, ये total marks आए हैं. So similarly, if we apply the same thing to demand, that is also true. Aggregate demand is nothing but the total demand. और जब हम total demand की बात कर रहे हैं, we are saying total demand of the entire economy. And economy में we have the household sector, we have the firm sector, we have the government sector and the foreign sector or the ROW, rest of the world. So जो डिमांड इन चारों सेक्टर से अराइज हो रही है दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड, द टोटल डिमांड. अब डिमांड को हम कैसे स्पेसिफाई करें? डिमांड इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर, उनका खर्चा. दैट मीन्स वो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं दैट दे आर स्पेंडिंग ऑन दोज थिंग्स एज वेल. सो कंज्यूमर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना खर्चा करा है, प्लस आपके गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना खर्चा करा, योर फर्म सेक्टर एंड ROW उन्होंने कितना खर्चा करा है. इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो वी गेट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड. Okay, so here we have to keep two things in mind. कि number one, we are talking about the final expenditure. Final expenditure से मेरा मतलब है उन goods पे मैंने खर्चा करा है जो कि final goods हैं. Okay, they are not intermediate goods, but the expenditure is incurred on the final goods. And second thing that you have to keep in mind, that when we are talking about aggregate expenditure or aggregate demand, we are talking about the planned expenditure, not the actual expenditure. हम कितनी सारी चीज़ें प्लान करते हैं लेकिन एक्चुअल वो नहीं होती हैं. तो एक्चुअल और प्लान में बहुत फ़र्क होता है. तो यहाँ पर जब हम टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, टोटल फाइनल डिमांड की बात करते हैं, we are talking about the planned expenditure or the planned demand. That is ex ante concept, ex ante. Okay, so you have to be very clear with these 2 points. So now I'll read the definition for you. Aggregate demand means the total demand for final goods and services, not intermediate goods. It is actually the total final expenditure, जो खर्चा हम कर रहे हैं, हम यानी कि इकोनॉमी कर रही है, इकोनॉमी की चारों यूनिट्स कर रहे हैं, चारों सेक्टर्स कर रहे हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर इनकरिंग दैट एक्सपेंडिचर ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज. इनको मिलाकर हम कैलकुलेट करते हैं द एग्रीगेट डिमांड. दैट इज एन ex ante कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्रीगेट डिमांड की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. अब जैसे मैंने बताया आपको कि हम जब एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, द एंटायर इकोनॉमी.
that has the household sector, the government sector, the firm sector, and the ROW. So aggregate demand या aggregate expenditure, here ED stands for aggregate demand and AE is the aggregate expenditure, one and the same thing. Okay, so aggregate expenditure या aggregate demand, इनके भी चार components हैं, क्योंकि ये तो understood सी बात है, जब sectors ही चार हैं तो कंपोनेंट्स भी चार होंगे, जिनको कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि इनको मिलाकर हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं. इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड से, तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हम टोटल डिमांड इकोनॉमी में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली द कंपोनेंट्स आर आल्सो गोइंग टू कंप्राइज ऑफ द फोर सेक्टर्स. ओके, सो ये जो चार कंपोनेंट्स हैं, आई हैव रिटन C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. So C here stands for the consumer goods, or I should say the final consumer goods, जो कि household sector जिस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं. Second is the investment expenditure या investment जो firm sector है, जो investment it is doing. Third is the government sector, और the government की जो final जो goods demand कर रहा है government, वो थर्ड कंपोनेंट है. एंड फाइनल इज X माइनस M, ऑल्सो नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स. X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड M स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स. ठीक है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में वी डिनोटेड विद X एंड इम्पोर्ट्स इट हैज़ एन M इन इट, वी डिनोटेड विद M. एंड दोनों का डिफरेंस टुगेदर हम इसको कंपोनेंट लेकर चलते हैं, अलग अलग नहीं लेते, दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं एंड इस कंपोनेंट को X माइनस M को हम टुगेदर वी कॉल इट एज नेट एक्सपोर्ट्स. ऑल राइट, नाउ लेट्स फर्दर स्टडी कि ये कंपोनेंट्स एक्चुअली हैं क्या. सो C जैसे मैंने आपको बताया, जो हाउसहोल्ड्स हैं उनका एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगेन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे वो कितना खर्चा कर रहे हैं, व्हाट आर दे स्पेंडिंग, देयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, व्हाट आर दे प्लानिंग टू स्पेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो आपकी कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकती हैं, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती हैं, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकती हैं. मतलब जो भी हम गुड्स एज हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं हम उसे कहते हैं, वी पुट इट इनटू द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर. ठीक है, जो कंज्यूमर करता है या हाउस होल्ड सेक्टर करता है. नाउ दिस component is dependent upon two things. Number one, MPC, that is your marginal propensity to consume, या आपकी कितनी willingness है consume करने की. And second is the disposable income. This is very understood. हम सारे households sector हैं, हम इसी चीज़ को लेकर डिमांड करेंगे ना कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं और क्या हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है. ये वही कह रहे हैं. MPC है हमारी विलिंगनेस टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी, हमारा झुकाव उस चीज़ की तरफ कि क्या हम इसको कंज्यूम करना चाहते हैं या नहीं. अगर मुझे जूस चाहिए तो मैं पानी क्यों डिमांड करूँगी, आई विल डिमांड जूस, माई प्रोपेंसिटी इज़ दिस. एंड सेकेंडली आई हैव टू सी अकॉर्डिंग टू माई इनकम, क्या मुझे ऑरेंज जूस लेना चाहिए या मुझे मिक्स जूस लेना चाहिए. अगर मेरी जेब में 20 रुपीज़ हैं एंड ऑरेंज जूस इज़ 15 एंड मिक्स फ्रूट जूस इज़ 25, so according to my disposable income, this is a hypothetical example, I'll obviously go for orange juice and I'm in no position to buy a mixed fruit juice. तो मुझे जूस चाहिए था, मेरी प्रोपेंसिटी MPC वो था. अब अकॉर्डिंग टू माई इनकम आई हैव गॉट ऑरेंज जूस. तो अगेन ये चीज़ यहाँ पे कंडीशन दोनों मुझे देखकर चलना है. इन दोनों चीज़ों को देखकर हम हाउस होल्ड जो है वो डिमांड करता है. ओके, दैट्स अंडरस्टूड. ओके, एंड डिस्पोजेबल इनकम और इनकम, नॉर्मल इनकम जैसे हम कहते हैं उसमें फ़र्क है. डिस्पोजेबल इनकम वो होती है दैट इज़ इनकम इन हैंड, जो आपके लिए खर्च करने के लिए तैयार हुई इनकम है, यू रेडी टू स्पेंड इट. दैट इज़ आफ्टर टैक्सेस जो इनकम आपके पास है जिसको आप एक्चुअली में खर्च कर सकते हो, दैट इज़ योर डिस्पोजेबल इनकम. ओके, द नेक्स्ट component is the investment expenditure. This is
डन बाय द फर्म्स सेक्टर, बिजनेस सेक्टर. सो दैट इज, ये खर्चा वो खर्चा है जो कि फर्म्स इनकर करते हैं ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो कि कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जैसे कि मशीन्स, प्लांट, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं फॉर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीमेंट, इनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स. अब कंज्यूमर सेक्टर था, वो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर है, दैट इज द फर्म सेक्टर, इज परचेजिंग द कैपिटल गुड्स. ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? दो चीज़ों पे. वन इज MEI एंड वन इज ROI. नाउ व्हाट इज दिस? MEI is marginal efficiency of investment and ROI is rate of interest. Marginal efficiency of investment का मतलब ये है, लिटरली अगर हम समझे तो, कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है. और एफिशिएंसी से मेरा एक सिंपल सा मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे को कितना रिटर्न देगी. ऑब्वियसली हम रैशनल हैं, है ना, वी हैव अ रैशनल माइंडसेट. हम उसी चीज़ को देखकर इन्वेस्ट करेंगे ना जो हमें अच्छे रिटर्न्स दे. अगर उस चीज़ में हमारा लॉस होगा, देन ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट. सो this is the MEI and the rate of interest. These are the two important factors when the firm is incurring expenditure on capital goods to increase the production capacity of the production process. All right. The next component is the government expenditure. अब गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे आप नोट करना कि गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्चा करती है एंड कैपिटल गुड्स पर भी खर्चा करती है. वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी to satisfy the collective wants of the society and move towards and do necessary things, take necessary steps towards the welfare of the society. So government is not restricted to only consumer good या only capital goods. According to the government priorities, according to the government budget allocation, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो दोनों गुड्स पे खर्चा करती है, and because it wants to do the best for the society. Okay, so expenditure incurred by the government on the purchase of consumer goods also and capital goods also, ताकि जो society की collective wants है वो satisfy कर सके. That comes as the third component of the government final expenditure. Again I am repeating myself कि जो भी खर्चा हो रहा है, that's on final consumer या final capital goods. We are not taking into account the intermediate goods. All right. Okay. The next is x minus m, जिसको हम टोटल इकट्ठे लेते हैं इनका डिफरेंस. वी टेक द डिफरेंस टुगेदर. हम एक्सपोर्ट्स अलग और इम्पोर्ट्स अलग नहीं लेते, हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं टुगेदर एंड वी कॉल इट एज नेट एक्सपोर्ट्स. ओके. नेट एक्सपोर्ट्स रिफ्लेक्ट्स द नेट डिमांड फॉर अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है जो मैं अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी डिमांड बाहर के देशों में, अब्रॉड में कितनी है. वाई? बिकॉज अगर उस चीज़ की डिमांड है तो डेफिनेटली अब्रॉड वाले दे आर गोइंग टू डिमांड द प्रोडक्ट और वो मेरी गुड खरीदने में खर्चा करेंगे. दैट आई एम गोइंग टू टेक इन टू अकाउंट when I calculate the aggregate demand, कि जो चीज़ मैंने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करी है, बाहर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे कितना डिमांड कर रहे हैं, ताकि दे आर गोइंग टू इनकर एक्सपेंडिचर टू बाय दैट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड. ओके. एंड अगेन ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये डिपेंड करता है कंट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से, बिकॉज यहाँ पर वी टॉक अबाउट एन ओपन इकोनॉमी. ये क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, दिस इज एन ओपन इकोनॉमी where we have interactions with the rest of the world also, and we are not confined to a domestic market. All right. So foreign trade policy and exchange rate, बाकी ये comparative quality prices पे भी dependent होता है, but main things that we take into account, the two conditions, मतलब two
parameters that are foreign trade policy and exchange rate. So this is the concept of aggregate demand and या जिसे मैं कहती हूँ aggregate expenditure, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एकदम से आपको पता होना चाहिए कि जब एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मुझसे पूछा है, सो आई हैव टू नो इट्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ओके, this is a very simple concept. You need not get confused in a very simple concept. If you still have any doubts pertaining to this concept, you can always drop your doubts in the comment section below. Okay, and also if you want videos related to some other topics that you have doubts in, please let me know and I'll make the video on that topic as well. So that's it for today's video. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Have a great day.